નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ અફેર્સમાં હું જયેશ સોની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ દેશભરમાં જે કાપડ ઉદ્યોગમાં સૌથી મોટી જેની છાપ ધરાવે છે સુરતની અંદર ફોસ્ટા નામનું જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટનું જે એસોસિએશન છે એની અંદર છેલ્લા ઘણા વખતથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। ચૂંટણી નહીં કરવાને કારણે થઈ રહેલા આ વિવાદની જે બાબતો છે એને કારણે આજે ફોસ્ટાની જે ઓફિસ ખરી એને તાળાબંધી કરી દેવામાં આવી છે અને જ્યાં સુધી ચૂંટણી નહીં થાય ત્યાં સુધી હવે ફોસ્ટાની કામગીરી રોકી દેવામાં આવી છે અને નવેસરથી ચૂંટણી કરાવી નવા હોદ્દેદારોની વરણી કરવા માટે માંગ કરવામાં આવી રહી છે। આ વિશે એક વિશેષ અહેવાલ જોઈ લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે કપડા વેપારીઓ સાથે આ મુદ્દે વાત કરીશું। ફેડરેશન ઓફ સુરત ટેક્સટાઇલ એસોસિએશનની ઓફિસને આજે ઘેરી લેવામાં આવી હતી। મહત્વની બાબત એ છે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં ચૂંટણી થઈ ન હોવાના કારણે ડિરેક્ટરોની બેઠક સહિતની અનેક બાબતો પણ સક્રિય રીતે કરવામાં આવી નથી। પરિણામે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને નડતરરૂપ જે મુદ્દાઓ હતા, જે પ્રશ્નો હતા તેને સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં પણ તેઓ નિષ્ફળ રહ્યા છે। અત્યારે ફોસ્ટા દ્વારા એક ચૂંટણી કમિટીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેમના દ્વારા પણ ઝડપથી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો નથી। તેને કારણે ટેક્સટાઇલ વેપારીઓ વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે અને ઝડપથી ચૂંટણી માટેની માંગ કરી રહ્યા છે। तो 6 प्रतिनिधि का पत्र हमने 28 तारीख को ही शाम को 5:30 बजे अपनी मीटिंग खत्म होते ही हमने हमारा पत्र फोस्टा कार्यालय में ले जाके दिया था और उनसे जवाब की अपेक्षा रखी थी। 8 दिन हमने राह देखी उनके जवाब आने की। 8 दिन उनका कोई जवाब आया नहीं, ना उन्होंने उस पत्र को देखा। हम 8वें दिन के बाद में 9वें दिन हम खुद गए। पहले जब पत्र देने का समय था तब मैं और संजय जगनानी जी गए थे। हमने वो पत्र उनको दिया था। पत्र के अंदर क्या लिखा है और क्या मांग है वो सब उसमें हमने दे दी थी उनको। છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ફોસ્ટાના પ્રમુખ તરીકે મનોજ અગ્રવાલ છે। સુરતના હજારો વેપારીઓનો આ ઉદ્યોગ હોવા છતાં પણ સંગઠનની રીતે મીંડું જણાઈ રહ્યું છે। ચૂંટાયેલી પ્રમુખ દ્વારા જે લોકશાહી ઢબે કામગીરી થવી જોઈએ તે થઈ રહી નથી। માત્ર સર મુખ્તિયાર શાહીની જેમ એક જ પ્રમુખ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પદ પર બેઠેલા છે। તેના કારણે વેપારીઓમાં હવે આંતરિક રીતે જૂથવાદ શરૂ થઈ ગયા છે। વેપારીઓ કહી રહ્યા છે કે સુરત ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં અલગ અલગ એસોસિએશનો બની ગઈ, તેના પાછળનું મુખ્ય કારણ ફોસ્ટા નિષ્ક્રિયતા છે। जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक फोस्टा मात्र एक कार्यालय है। यहाँ का कोई प्रेसिडेंट, कोई भी सेक्रेटरी आज के बाद नहीं रहा है। 194 मार्केट के सभी प्रतिनिधियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से फोस्टा नामक संस्था भंग कर दी गई है। ये मात्र एक कार्यालय है। जब 194 मार्केट मिलके एक नया प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे उसके बाद हमारी संस्था फोस्टा वापस क्रियान्वयन में आएगी और फोस्टा का प्रतिनिधित्व हम एक अच्छे हाथों में देना चाहते हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेसी के हिसाब से हम लोग को नियुक्ति करना चाहते हैं। ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના જાણીતા વેપારીઓ આજે જે માર્કેટ ખાતે ધરણા પર બેસી જવાનો નિર્ણય કરાયો હતો। આખરે તેઓ તેમના સમર્થકો સાથે ધરણા પર બેસી જતા પોલીસની ટીમ તેમને લઈ જવા માટે આવી હતી। કૈલાશ હકીમે શરૂઆતમાં પોલીસને સહકાર આપ્યો ન હતો, પરંતુ ત્યારબાદ પોલીસની સમજાવટ બાદ તેઓ પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યા હતા। તેમણે સમર્થકોની હાજરીમાં જ ફોસ્ટાની ઓફિસને તાળાબંધી કરાવી હતી। તો આપણે જોયું કે ફેડરેશન ઓફ સુરત ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન ફોસ્ટા ની અંદર જે વિવાદ વકરી રહ્યો છે એ એટલા હદે વકરી ગયો કે આજે ફેડરેશનની ઓફિસને તાળાબંધી કરવામાં આવી। ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં આ ફેડરેશન સાથે વેપારીઓ જોડાયેલા છે। 194 માર્કેટ અને લગભગ 70,000 જેટલા કપડાના મોટા વેપારીઓ આ ફેડરેશન સાથે જોડાયેલા છે। અને આ જે વિવાદ છે એ વિશે વધુ આપણે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે કેટલાક કપડા વેપારીઓ જોડાઈ રહ્યા છે। દિનેશભાઈ કટારિયા
આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, જયલાલભાઈ જોડાઈ રહ્યા છે અને લલિતભાઈ જૈન જોડાઈ રહ્યા છે. આપ તમામનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા બદલ. અને સૌથી પહેલા मैं सबसे पहले अरे रुको उनको. हाँ जयलाल जी रुकिए एक मिनट, मैं आपसे बात करता हूं. सबसे पहले हम कटारिया जी के पास जाएंगे. कटारिया जी, क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये जो विवाद हो रहा है, किस बात को लेकर के है ये विवाद? दिनेश भाई, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए, आपका ऑडियो म्यूट है. लग रहा है कि किसी कारणवश दिनेश भाई की आवाज नहीं पहुंच रही है. हम जयलाल जी के पास जाएंगे. जयलाल जी, क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये पूरा विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया? जयलाल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आपके तक? हाँ पहुंच रही है. अभी आवाज आ रही है. आप भाई, आपकी आवाज. आप भाई जयलाल जी, क्या है ये पूरा मामला, क्यों? हाँ जयलाल जी जी, क्या पूरा मामला क्या है ये फोस्टा का? जी जी जी, क्या मामला है पूरा, ये क्यों ये इतना ज्यादा विवाद हो रहा का है? मामला केवल ये है कि पिछले 10 साल से कोई भी चुनाव नहीं हुए हैं. जो आज 2012 में पोस्टा के इलेक्शन हुए थे, वो इलेक्शन मैंने भी लड़ा था. 2012 के बाद हम लोगों को मात्र 3 सालों के लिए चुन के भेजा गया था. तो 2015 में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे, वो इलेक्शन नहीं हुए, जिसके कारण व्यापारियों में आक्रोश था. और उन्होंने कहा कि एक इतनी बड़ी व्यापारिक संस्था फोस्टा, जो कि भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी का प्रतिनिधित्व करती है, वो अगर 3 से 10 साल तक बिना इलेक्शन के ऐसे ही बैठे रहेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं अपनाएगी, तो हम व्यापारियों की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचेगी? 10 साल तक इलेक्शन नहीं होने के कारण फोस्टा पूरी तरह से कमजोर हो गई थी. मुझे याद है, मैं आपको बता दूं तो मैं फोस्टा का सबसे पहला जो इलेक्शन हुआ था 1999 में, वो इलेक्शन भी मैंने ही कराया था. मैंने उसमें चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हम सफलतापूर्वक जीत करके आए थे. उसके कारण फोस्टा इतनी मजबूत हो गई थी कि हमारी आवाज गांधीनगर से लेकर के और दिल्ली तक पहुंचती थी. यहाँ तक कि वहाँ के दिल्ली के मंत्री, कपड़ा मंत्री शंकर सिंह वाघेला वगैरह हमको सामने से बुलाते थे कि आप आइए, बताइए कपड़ा उद्योग की क्या समस्याएं हैं, ताकि हम उन समस्याओं का हल निकालें और उद्योग व्यापार बढ़े. आप ये सोचिए 1999 में कपड़े में मात्र 5 या 6 लाख लोगों को रोजगार मिलता था. हमारी इन नीतियों के कारण और फोस्टा की नीतियों के कारण आज 12 लाख से लेकर 15 लाख लोगों को हमने रोजगार दिलाया और इस प्रकार सरकार की आय भी बढ़ी. अब क्योंकि फोस्टा निष्क्रिय हो गई है, जब हमने ये फोस्टा शुरू की थी उस समय सूरत में मात्र 3 से 4 करोड़ मीटर कपड़ा बनता था. 1 से 1.5 करोड़ मीटर कपड़ा बनता था. आज पर डे कपड़ा का उद्योग सूरत में 4 करोड़ मीटर पर डे का है, मगर पिछले कुछ महीनों में यह घट करके 2.5 से 3 करोड़ तक आ गया है. ऐसा क्या कारण है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय 25 से 30% कम हो गया है? उसके कारण नीतियां हमारी गलत हो गई. वो भी चौबीस करने हैं जी बिल्कुल 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 जयलाल जी, आपकी बात समझ रहे हैं हम. हमारे साथ ललित जैन जी भी जुड़ रहे हैं. ललित जी, क्या है ये जो आगे हाँ जी जी ललित जी, क्या मांगे रही अभी क्या जो मांग है, प्रमुख मांगे क्या है और फेडरेशन की जयेश भाई पहले जयलाल जी को रोकिए और म्यूट कीजिए, क्योंकि जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते नहीं है, जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ बोलते हैं.
ऐसा है कि 2015 के अंदर चुनाव लंबित हो गए थे। 2015 में चुनाव करवाने थे। तत्कालीन अध्यक्ष श्यामा प्रसाद जी बुदिया, उन्होंने मनोज जी अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया था खाली चुनाव कराने के लिए। 31 डायरेक्टरों की जो टीम होती है, 31 डायरेक्टरों का चुनाव उनको करवाना था जी, 2015 के अंदर। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने चुनाव नहीं करवाया। 2017 से 2016 से इस मुहिम को हम चला रहे हैं। ये जो जयलाल जी भी बोल रहे हैं कि हमने बोला किया करा, मैं खुद इनको फोन करता था, एक बार भी किसी भी डायरेक्टर ने इंटरेस्ट नहीं लिया। ये जो आपके साथ में दिनेश जी कटारिया है, मैं इनको सबसे ज्यादा साधुवाद दिनेश अंकल को देना चाहूंगा, इनको दिनेश जी कटारिया को, जिन्होंने हमेशा हर कदम पे हमारा साथ दिया। और कल जो घटनाक्रम बना वो कैलाश भाई हाकिम के कारण हुआ। कैलाश भाई हाकिम के सफल नेतृत्व के अंदर, उनकी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण कल ये संभव हो पाया। इतनी बड़ी संस्था, 70,000 जिसमें व्यापारी है, उनकी संस्था जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, 30 डायरेक्टरों में से खाली 5-6 डायरेक्टर थे वो सक्रिय थे, बाकी ऐसे सुसुप्त अवस्था में थे जैसे कुंभकर्ण वाली घुंटी पिला करके सुला दिया गया हो। कोई भी व्यक्ति बोलता नहीं था। हम लोग बोलते थे कि लो चुनाव करवाओ करवाओ करवाओ, लेकिन हमारी आवाज जो है वो नक्कार खाने में तूती की तरह दबा दी जाती थी। कोई उसकी सुनवाई नहीं थी। अगर कल का घटनाक्रम नहीं होता तो मेरे को लगता और ज्यादा और मामला आगे खींचता, लेकिन कल के घटनाक्रम के अंदर पुलिस का हस्तक्षेप रहा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात जो रखी और बाद में जो मध्य रास्ता जो होता है वो निकाला गया और अब चुनाव होने वाला है। अब चुनाव जिन शर्तों पे होने वाला है वो सही है। जैसे पहले क्या हुआ था, इन तत्काल जो ये कार्यकारी अध्यक्ष जी है, इन्होंने ऐसे कर दिया था कि जो अध्यक्ष महामंत्री है वही वोट देंगे। छोटे मार्केट का भी वही था, बड़े का भी वही था। तो अभी क्या है, 2, 4 और 6 का स्लेब किया है, वो सराहनीय है। और 15 जुलाई से पहले चुनाव हो जाएंगे ऐसा हमको लग रहा है। चुनाव होना किसी भी संस्था के लिए नितांत आवश्यक है। 2012 के चुनाव में चुनावी मुद्दा ये था कि हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे, जैसे ही पैनल बनेगा, बॉडी बनेगी, वैसे ही संविधान पास करवाएंगे। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, उन 30 के 30 डायरेक्टरों को मैं क्या बोलूं, मैं अच्छा भी नहीं लगता बोलना, क्योंकि सब मेरे से बुजुर्ग है। उन्होंने कुछ नहीं किया, 3 साल तक खाली बैठे रहे। 3 साल के बाद मनोज जी को सत्ता सौंप करके सब अलग हो गए। मनोज जी 8 साल तक बैठे रहे। संविधान का सह भी नहीं लिखा गया, संविधान पास नहीं करवाया गया। अभी तक इतनी बड़ी संस्था है, रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत उसको नहीं ले जाया गया। आर्बिट्रेशन की बात होती थी कि आर्बिट्रेशन एक्ट इसके अंदर लाया जाएगा, क्योंकि बाहर गांव के व्यापारी जो होते हैं पैसा खा जाते हैं, पैसा डूब जाता है, उसके लिए आर्बिट्रेशन यहाँ पे लागू करना था। इतनी सब कुछ बातें थी, वो सारी की सारी हाशिए पे रह गई। उसका मुख्य कारण था कि जितने डायरेक्टर थे सब के सब जो है वो सुसुप्त अवस्था में चले गए। किसी को संस्था से कोई मतलब नहीं था, न चुनाव कराने से मतलब नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये दिनेश कटारिया जी और कैलाश जी हाकिम का मैं फिर से धन्यवाद करूंगा। इन्होंने आगे आकर के पीड़ा उठाया। खाली मैं अकेला बोलता था, फोन करता था, लोग मेरा फोन नहीं उठाते थे डायरेक्टर लोग। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं एक एक को मैंने फोन किया है, कोई फोन उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि सब आनंद में ले रहे थे। वो एकदम गलत था। अब चुनाव हो रहे हैं, अच्छी बात है। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छी बॉडी, उसके अंदर जो भी व्यक्ति समय दे सकता हो, व्यापारी हित की बात करता हो, कपड़ा व्यापारी हो, ऐसा व्यक्ति ही चुन करके आना चाहिए। उसी से सूरत कपड़ा बाजार का भला है। नहीं तो पिछले जैसे हुआ अगर, तो फिर से वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे, कोई भला नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो पुराने बोलते हैं कि हम बहुत पुराने हैं, अरे क्या कर लिया पुराने हो? एनटीसी रद्द हुए 2004 के अंदर, एनटीसी रद्द हो गई थी, 2024 चल रहा है, क्या कर लिया आपने? इस संस्था का जितना पथारी फेरी है उन्होंने, जो ये पुराने जो कहते हैं ना अपने, उन लोगों ने फेरी है। मैं बड़े खेद के साथ कहता हूं कि ये सब दोषी है। जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, वीरबंधु दाई है कौन विपत का, हम किसको दोषी कहे तुम्हारे वक्त का। अरे एक हो तो मैं नाम गिनाऊं, सारे के सारे दोषी है, किसको मैं बोलूं दोषी है? ये जो मनोज जी इतने दिन बैठे थे, हर धार्मिकता के कारण बैठे थे, उसमें भी यही कारण दे रहा था। जयेश भाई आगे तो दिनेश अंकल बैठे हैं, दिनेश कटारिया जी, उनसे आप पूछिए। वो मेरे साथ में थाली बजाने से लेकर के हर चीज के अंदर दिनेश कटारिया कैलाश जी हाकिम का मैं फिर से साधुवाद करना चाहूंगा। उनके नेतृत्व में कल जो कार्य हुआ, उन्हें भूतो न भविष्य था। ये पिछले बार मीटिंग हुई थी उसमें हो सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। लेकिन उस भूतकाल को मैं नहीं दोहराऊंगा। कल जो कार्य हुआ वो जरूरी था, प्रबल इच्छा शक्ति के कारण हुआ। आज फोस्टा फिर से अपना वर्चस्व कायम करे,
कपड़ा बाजार के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा कपड़ा बाजार सूरत है, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार, और सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन है। हमारी अलग अलग संस्थाएं सभी की है, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी संस्था वह है, सबसे बड़ी बिल्कुल। संस्था में लोकतंत्र कायम हो तथा आगे व्यापारियों के काम आए, इस प्रकार से चुनाव हो और अच्छे लोग आए, काम करने वाले लोग आए, न कि खाली जीत करके घर पे बैठ जाने वाले आए। वही मैं अपेक्षा करूंगा, वही मैं आशा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ललित जैन जी, बिल्कुल आपकी जो बात है वो बिल्कुल ही जायज है। इतनी बड़ी संस्था है और इसके अंदर लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी होना चाहिए वो कार्य ना हो तो आक्रोश बढ़ता है, ये बिल्कुल ही जायज है। हमारे साथ दिनेश कटारिया जी भी जुड़ गए हैं और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। दिनेश भाई, कैसे रहा ये पूरा जो ये पिछले कई दिनों से चल रहा है ये जो विरोध प्रदर्शन है फोस्टा के खिलाफ, खुद फोस्टा के मेंबरों को ही विरोध करना पड़ रहा है और आज चुनाव की मांग को लेकर के इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है आपको? मैं सबसे पहले ललित जी शर्मा, जयलाल जी को मेरा नमस्कार, और इंडिया न्यूज चैनल ने अभी इस बात को लाइव पे लिया, इसीलिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। पिछले ये लड़ाई आज की नहीं थी, ये लड़ाई 2014 से शुरू हुई थी। 2014 से जब ये इलेक्शन डिक्लेयर करने का समय नहीं आया, ये लोगों ने इसको पोस्टपोन करने का जो तरीका अपनाया, तो जब सावर जी बुद्धिया आखिरी अध्यक्ष थे, उन्होंने मनोज जी अग्रवाल को ये सोच के ये सत्ता दी थी कि मनोज जी अग्रवाल का एक रिक्वेस्ट था कि कार्यकारिणी अध्यक्ष मुझे बनाइए, मैं 3 से 4 महीने के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर करके ये प्रणाली को मैं आगे चलाऊंगा। ये बात रख के उन्होंने काम चालू किया था, पर मनोज जी ने इस व्यवहार का गैर फायदा उठाया। फिर 2014 के अंदर वापस एक बार अनाउंसमेंट आई कि मार्केट से फीस इकट्ठा करके आप हमें लाके दीजिए, हम इलेक्शन करेंगे। तो मैं और संजय जगनानी जी, हम 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो मार्केट में डोर टू डोर घूमे और घूम के मार्केट से पैसा इकट्ठा करके मनोज जी अग्रवाल को लाके दिया, शेख मार्केटों के इकट्ठा करवा के उनको पहुंचाए और उनको यही रिक्वेस्ट किया कि आप संविधान के हिसाब से चुनाव कीजिए, जबकि इनका संविधान ही नहीं है। यह नैतिकता का मैटर था, क्योंकि यह बैठने के बाद में इन लोगों ने आज दिन तक, जैसे हमारे 22 साल से डायरेक्टर है जयलाल जी, 22 साल से उनको अभी तक ये पता नहीं चला कि हमारा एनटीसी का लॉ 2006 में ही निरस्त हो गया है। मुझे मालूम था, मैंने बहुत प्रयास किया, मैं गांधीनगर तक हो के आया इसके लिए, और मैं आपको बता दूं, मैं चैरिटी कमिश्नर से भी मिला उस विषय में, मगर आप तक ये जानकारी नहीं पहुंची क्योंकि कोई उसमें ध्यान देता ही नहीं था। वो आपका प्रयास कुल्हड़िए में गुड़ फोड़ने जैसा था। जी जी, गुड़ फोड़ेगा कोई पता नहीं। जयलाल जी आपके पास आ रहा हूँ, मार्केट के अंदर आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है जयलाल जी, मैं आपके पास आता हूँ। अगर आपको दिनेश जी को बोलने दिया जाए। आपको मालूम था कि दिनेश कटारिया कोई एक व्यक्ति है, लड़ने को तैयार है। ललित उस समय दिनेश कटारिया जी का कहीं नाम नहीं था, उस समय दिनेश कटारिया जी फोन नहीं उठाते थे। हाँ, उस समय नहीं फोन उठाते थे, पूरा बात करते थे, सब बात करते थे। आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं। दिनेश जी को बोलने दिया जाए। दिनेश जी को अपनी बात करने दें, बाद में सबको मौका देंगे। 400 लोगों के फोन मैंने उठाए। अरे उनका भाई साहब माइक 2 मिनट म्यूट कीजिए, बात पूरी करने दीजिए। ये जो बात दिनेश जी की बात पूरी होने दीजिए। जयलाल जी आपके पास भी आता हूँ। कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन सक्रिय है, पर अकेले जयलाल जी की गलती नहीं मानेंगे। पर पिछले 2 साल से ये अभी जो पीछे का टर्म गया है, कोरोना काल के बाद का जो टर्म गया है, उसके बाद में मैंने और ललित भाई ने कम से कम 4 बार पोस्ट ऑफिस गए, इस सॉल्यूशन को लाने की कोशिश की है। थाली बजानी थाली बन रही है, अनशन के लिए बैठना है, उसके लिए तैयारी रखी, कहीं भी हम पीछे हटे नहीं। पर आखिर जो नियत से काम करेगा वही काम होगा। इनकी नियत उस टाइम भी सही नहीं थी
और अभी जो फोस्टा का चुनाव हो रहा था उसके अंदर भी इन लोगों ने अपनी नीयत का प्रदर्शन किया। इनको इतना नहीं समझ में आया कि ये जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, 70,000 व्यापारी बदनाम हो रहे हैं और 0 प्रतिनिधि, एक मिनिस्ट्री भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, एक मिनिस्ट्री भी हमारे पास आने को तैयार नहीं। उसके लिए भी जिम्मेदार ये लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक ये काम किया हमारे साथ में। सावरजी प्रसाद बुदिया का मैं खूब धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा, इस बात को जानने की पूरी चेष्टा की और ये जानने के बाद में उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया और सबसे आगे लीड के अंदर सावरजी प्रसाद बुदिया जी आए, कैलाश जी तो कल आए और कैलाश जी ने जो काम उनका था वो काम उन्होंने करके बताया। ये संगठन की शक्ति है हमारे, जो हमने ये काम किया। बाकी जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है इंडस्ट्री के साथ में, ये इंडस्ट्री इन लोगों को एक को भी कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये बुरे दिन इन्होंने बताया हम लोगों को। आज दिन तक जिस हिसाब से काम हुआ वो दिनेश भाई, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। इन्होंने कोई फोस्टा का डेवलपमेंट नहीं किया, पूरा की पूरा फोस्टा के अंदर कभी एक सामाजिक काम नहीं हुआ, कभी एक सांस्कृतिक काम नहीं हुआ, कभी एक किसी न किसी दुकानदार का भला नहीं हुआ। फिर ये संस्था हमारे क्या काम की? ये फेडरेशन होके भी, फेडरेशन रह के भी ये काम नहीं हुआ, तो फिर ये छोटी संस्थाएं क्या कर सकती है? इतना मजबूत ताकत रह के सरकार के साथ 1 to 1 बात करने का पावर रहने के बावजूद ये व्यापारियों का कभी भला नहीं कर सके। इसीलिए मजबूरन उनको समय दिया। 15 दिन पहले हमने एक बड़ी मीटिंग कॉल की, 21 डायरेक्टर ने इनके खिलाफ लिख के दिया कि हम लोग आपके साथ हैं, आप इनको बर्खास्त कीजिए। पर व्यापारी रहने की वजह से और हमारी नीयत में हमेशा भलाई थी, उस नीयत को, भलाई को रख के हमने उनको फिर मौका दिया। हमने फोस्टा के 5 अधिकारी जिन्होंने जो समिति जो चुनी गई थी, हमने उसको भी नहीं हटाया, उसके अलावा 6 जोड़ने की कोशिश, पर उन्होंने इस चीज को माना नहीं, तो भी हमने उसको सहन किया। चलो कोई बात नहीं, आप आपके पुराने फोस्टा के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट के पूर्व प्रेसिडेंट को भी आप मानने को तैयार नहीं, पर उन लोगों ने भी अपनी संयमता बताई कि कोई बात नहीं, आप नहीं मानते हो कोई बात नहीं, पर इलेक्शन करके लाओ। पर इसके अंदर जो पूर्व प्रेसिडेंट जो थे, जो अभी कार्यकारिणी थे, मनोज जी अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, राजेश जी अग्रवाल और चंपालाल जी बोत्रा, ऐसे ये 4 लोग हैं जिन्होंने ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं करने का सौगंध लिया था। कैसा भी करके ये इलेक्शन को टालो और जो पिछले अपने इतने सालों से बैठे इसी तरह से इसको आगे खींचो, ये इनकी नियत थी। पोस्टा के समिति जो कमेटी जो इन्होंने नियम की थी, उस कमेटी के ऊपर भी इतना दबाव लाया कि आप कैसा भी करो इस्तीफा दे दो, ताकि हम हमारे हिसाब से लोग लाए, और लाए तो लाए, नहीं तो आने वाले 2-4 साल और इसको आगे चला। दिनेश भाई जयलाल से टाइम की अवधि, इसलिए हमको कल मजबूरी दिनेश भाई, कल हमारी आखिरी हमारा जो संयमता थी वो कल टूट गई। संयमता टूटने के बाद में हमने जो काम किया वो सारे मीडिया में और सारी सब जगह आज आ गया, और हमने रात को 10:30 बजे तक बैठ के पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने सब कबूल किया, और कबूल करके जो चीजें माननी थी उस हिसाब से इलेक्शन की प्रणाली नक्की की। और 15 जुलाई ये सारी तक इलेक्शन करना कंपलसरी है, ऐसा उनका ऑर्डर निकला, और इन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर करके इसको क्लियर किया। जी बिल्कुल दिनेश भाई, आपकी सारी बातें हमने सुन ली। जयलाल जी की बात भी हम सुन लेते हैं। जयलाल जी, कहाँ क्या कमी रह गई थी आज आप पर लोगों का मैं सबसे पहले तो दिनेश भाई कटारिया का बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सच्चे मन से फोस्टा के चुनाव कराने का बीड़ा अपने ऊपर उठाया, और उसके बाद उन्होंने हम सबको जोड़ने की कोशिश की। दिनेश जी ये मानेंगे कि जब भी उन्होंने फोस्टा के इलेक्शन के लिए मेरे को फोन किया, मैंने उनका फोन उठाया, उन्होंने मेरे से कहा जयलाल जी अभी के अभी आप 15 मिनट में फला जगह आ जाए, हम लोग बैठे, आप आइए। मैं वहां पे तुरंत पहुंचता था, उनकी बात सुनता था,
और मैंने ही उनको प्रोत्साहन दिया कि भाई आप इलेक्शन कराएं। एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे 2015 में टर्म खत्म हो रहे थे। 15 अगस्त 2015 को मैंने सबसे पहले फोस्टा को लेटर लिखा। उसमें मैंने लिखा कार्यकारी अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, कार्यकारी अपने चंपालाल जी बोथरा और राजेश अग्रवाल, इन तीनों से मैंने कहा कि आप लोगों को कार्यकारी पद दिया गया है मात्र 3 महीने के लिए, और आपने मीडिया के सामने ये कहा है कि इन 3 महीनों में आप इलेक्शन कराएंगे। मगर आज 3 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, आप कृपा करके इलेक्शन कराएं। और मैंने उनको जो हमारे संविधान के अनुसार इलेक्शन का प्रोसीजर था वो भी बताया कि आप तुरंत एक इलेक्शन कमेटी की घोषणा करें, 5 आदमी की या 7 आदमी की, और सारा कार्यभार उनको सौंप दीजिए और वो इलेक्शन कमेटी अपना 1 महीने या 2 महीने में चुनाव कराए और ये प्रक्रिया आप आगे बढ़ाए। वो पत्र मैंने फोस्टा के कार्यालय में भेजा और उसको फोस्टा के साइन सिक्के से रिसीव करवाने के लिए मैंने बोला। इन्होंने मना कर दिया, बोला आपने इसमें कार्यकारी अध्यक्ष लिख दिया, हम ये लेटर रिसीव नहीं करेंगे। मैंने कहा अगर रिसीव नहीं करोगे इस इलेक्शन को कराने का लेटर तो मैं सीधा ये पुलिस कमिश्नर को लेटर भेज दूंगा, फिर तुमको वहां जाकर के रिसीव करना पड़ेगा। तो डर करके इन्होंने साइन सिक्का लगा करके मेरा वो 15 अगस्त 2015 का लेटर रिसीव किया। उसको मैंने प्रेस में भी भेजा, मगर उस समय कोई भी व्यापारी आगे नहीं आया, मेरे को कहीं से समर्थन नहीं मिला। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इन पीरियड में जितने दिन तक मैं डायरेक्टर रहा और आज भी, मैंने कोई भी व्यापारी ये कह दे कि मैं जयलाल जी के पास किसी काम के लिए गया और उन्होंने नहीं किया हो तो मैं उसके लिए अपने को गुनाहगार मानता हूँ। मैंने समस्त व्यापारियों के हर काम को किया और व्यापारी के लिए जहाँ जरूरी हुआ, गांधीनगर जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, जयपुर जाना पड़ा, भरूच जाना पड़ा, बड़ौदा जाना पड़ा, मैं सब जगह गया और हर जगह जहाँ यथासंभव मैं अपनी क्षमता के अनुसार व्यापारी के सारे काम करवा करके आया। इलेक्शन का जहाँ तक है, इलेक्शन अवश्य होने चाहिए। केवल और केवल अगर सच्चे मन से इलेक्शन की बात करें तो इन्होंने ये जो अपने हैं इन्होंने सच्चे मन से प्रयास किया और मैंने उनको पूरा साथ दिया 4 कदम आगे बढ़ के। सावर प्रसाद बुधिया जी जब भी मेरे को फोन किए मैं उनके पास गया, हालांकि मैंने गुटवाद वहां नहीं बनाया। मैं आपको बता दूं, सावर प्रसाद बुधिया जी को फोस्टा का प्रमुख मैंने ही बनाया था। जब वो हमारी फोस्टा की मीटिंग हुई थी, मैं डायरेक्टर था, उस कमेटी का चेयरमैन मैं ही बना था, मैंने ही इलेक्शन कराए और सावर प्रसाद बुधिया जी को दिया। उस समय अपने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रूपाला जी सूरत में थे, उनको भी मैंने उस मीटिंग में बुलाया और उनके सामने हमने सावर प्रसाद बुधिया को पद की और गोपनीयता की शपथ मैंने सारे पदाधिकारियों को दिलाई थी। मैंने अपनी तरफ से जो भी प्रयास हुआ किया और मैं आगे भी करता रहूंगा अपने निष्पक्ष रूप से। तो मैं इसके लिए दिनेश जी को हृदय से आभारी मानूंगा। बाकी तो लोग केवल बिल्कुल जयलाल जी, आपकी निष्ठा, आपकी कार्य प्रणाली पर जी जयलाल जी, आपकी निष्ठा और कार्य प्रणाली पर तो वैसे भी कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन ठीक है, ये जो अभी बात हो रही थी कि आप निष्क्रिय हो गए थे और आपने दिल से प्रयास नहीं किया, लेकिन आपकी जो बात है वो उन्होंने भी सुन ली है और वो भी मानते हैं कि केवल आपका दोष नहीं था, ये बाकी जो भी 30 डायरेक्टर थे उन सब की जो होनी चाहिए कोशिश है वो पर्याप्त नहीं थी, जिसकी वजह से अब तक ये इलेक्शन नहीं हो पाया। आपका दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जयलाल जी और ललित जी, आप भी हमारे साथ जुड़े और ये जो पूरी चर्चा की, जो फोस्टा के जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है चुनाव को लेकर के, उसके बारे में जो आपने जानकारी दी, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से जुड़ेंगे इसी मामले को लेकर के, आगे भी हम चर्चा करेंगे। आज फिलहाल समय की अवधि समाप्त हो रही है, तो हम आज अपना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।